Good evening, class. Today we have to complete the fifth chapter, the principle of inheritance and genetics. Okay, so in last class we have studied the chromosomal inheritance in blood related questions, and we have also done different types of experiment in the class. Okay, we have done sickle cell anemia, we have done the recessive characters of C gene, and now we are going to discuss some more important and blood related questions. Why? Because in most of the exams the questions may be asked that, okay, so we have to discuss that the blood related questions. The first we have to discuss the hemophilia. Okay, what is the meaning of hemophilia? Generally hemophilia is another such type of disease when the certain types of recessive genes when present in any of the sex chromosomal, whether it is male and female, that time it causes as hemophilia. Okay, hemophilia is a special type of disease. Generally it is caused by the recessive gene small h. ठीक है, ये recessive gene small h से होता है, and generally it is a very effective and very dangerous because we know that the clotting of blood takes approx 2 to 8 minutes. Okay, we know that when we get injured by the any needle, any blade and any iron material, that time our blood flow with our body and it stop automatically after 2 to 8 minutes. 2 से 8 मिनट के बीच में हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है. But when the person is suffering from the hemophilia, their blood is not stop. It takes approx 30 minutes and it may be highest 24 आवर्स. ठीक है, या तो उसे 30 मिनट लगेंगे या फिर उसे एक दिन भी पूरा लग सकता है. दैट टाइम द पर्सन ऑलरेडी डाई. उस टाइम पे जो इंसान होगा वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, एंड दैट इज द कॉजेस ऑफ हीमोफीलिया. ठीक है, इसी को हम हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं. जनरली अगर यहाँ पे फीमेल कैरियर है, why? Because XX is the female chromosomes and XY is the male chromosomes. जब ये parental के gametes निकल कर आएंगे, ठीक है, when we do the cross between female and male, that time we get the result. यहाँ पे female carrier थी तो ये कैरियर ही रहेगी, लेकिन जो मेल था यहाँ पे वो इसकी जो गैमेट्स बनेगी ये हीमोफिलिक हो जाएगा. ठीक है, ये हीमोफिलिक डिजीज्ड हो जाएंगे क्योंकि ये कैरियर नहीं थे, लेकिन इनके बीच में क्रॉस होने की वजह से ये हीमोफिलिक डिजीज्ड होगा. ओके, और ये जो आएगी गर्ल्स ये एक नॉर्मल होगी, और ये जो बॉय आएगा ये भी कैसा होगा? नॉर्मल होगा. ठीक है, दैट इज द क्रॉस बिटवीन एक्स एच. यू कैन ऑल्सो डू द एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग एस. ठीक है, आप इसको और इसका क्रॉस करेंगे, एक्स एच और एक्स आएगा. देन यू हैव टू डू द क्रॉस बिटवीन एक्स एच एंड वाई, एक्स एच एंड वाई. ठीक है, सो ये जो होगा वो कैरियर होगा और ये जो होंगे वो डिजीज्ड हो जाएंगे, डिजीज्ड हीमोफिलिक. व्हाई? बिकॉज इन दिस केस मेल इज नॉट अ कैरियर. ठीक है, यहाँ पे मेल जो था ना तो कैरियर था ना ही डिजीज था, लेकिन जब क्रॉस हुआ तो ये वाला जो रिसेसिव एस था वो मेल के साथ आके अटैच हो गया इस एक्स क्रोमोसोम्स पे. दैट्स व्हाई मेल बिकम डिजीज्ड हीमोफिलिक एंड दिस इज कॉल्ड द हीमोफिलिया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोफिलिया. नाउ नेक्स्ट we are going to complete the last part of the valuable topic, and that is the inheritance causes as genetic disorders. ऐसे बहुत सारी बीमारियों को आज हमें डिस्कस करना है which is most important for your board exams also. Okay, so first we are going to discuss that genetic disorders की बात करते हैं. Genetic disorders are generally, genetic means a disorders which arises from the genes are called genetic disorders. ठीक है, जो जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं that is called genetic disorders. मोस्टली इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आते हैं और क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर्स आते हैं. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर्स, एंड these two disorders are very important because most of the time the questions may be arises. Okay, so in first we are going to discuss that what is the meaning of Mendelian disorders. Mendelian disorders का मतलब क्या होता है? So first, Mendelian disorders, it is generally caused by alternation or mutation of any single gene. जब भी किसी एक सिंगल जीन के बीच में अल्टरनेशन होगा, चेंजेस होंगे, वेरिएशंस होगा, म्यूटेशन होगा, दैट इज कॉल्ड दी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. अगर किसी भी ह्यूमन बींग्स में किसी भी जीन को लेकर अल्टरनेशन होता है, चेंजेस होता है, म्यूटेशंस होते हैं, अगर वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, म्यूटेशन का मतलब होता है वेरिएशन होना, दैट टाइम इट कॉजेस एज मेंडेलियन डिसऑर्डर. इसी को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं. सो इन
in our book there is a different types of disease which is generally caused by Mendelian disorders law. मेंडल के डिसऑर्डर्स के द्वारा ऐसे जो उन्होंने फर्स्ट लॉ या जो भी उन्होंने लॉज दिए हैं उसके कारण बहुत सारे इनके डिजीज आते हैं विच वी हैव टू डिस्कस टुडे, ठीक है, जिसको आज हमें डिस्कस करना. नाउ द फर्स्ट वन इज थैलेसीमिया. ओके, फर्स्ट वन जो है हमारा एंड दैट इज थैलेसीमिया. थैलेसीमिया जो होता है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिजीज विच इज रिलेटेड टू ब्लड. किससे रिलेटेड है ये? ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, थैलेसीमिया इज अ वर्ड रिलेटेड टू ब्लड, एक ब्लड से रिलेटेड है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइल्ड एनीमिया, ठीक है. इसको हम माइल्ड एनीमिया के नाम से भी जानते हैं एंड जनरली we know that mild anemia, and anemia is also caused by the formation or the higher production of RBC. अगर higher production नहीं हो रहा RBC का, RBC बनने बंद हो गए, there is a lack of RBC in our human body and that time the black like spots are appears on the below the eye, आंखों के नीचे काला पड़ जाना, and that is the spotted like structure generally comes in the anemia disease. So this is all about the same here thalassemia, but it is also gets affected by the alpha and beta protein chains protein, ठीक है. अल्फा और बीटा इनमें जो चैन प्रोटीन्स होते हैं जनरली इनके लैकिंग की वजह से भी ये थैलेसीमिया नाम की डिजीज होती है. ओके, सो कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं. व्हाट इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनी अल्फा एंड बीटा कॉजेस थैलेसीमिया डिजीज में? बॉन डिफॉर्मिटीज, बॉन जो है डिफॉर्म होने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं. फेस की बात करते हैं तो ठीक है. नेक्स्ट, डार्क यूरिन, जो यूरिन होते हैं, यूरिनेशन होते हैं जनरली ह्यूमन बींग्स में, वो ब्लैक कलर में होने लगते हैं. एंड डिलेड ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है किसी भी ह्यूमन बींग्स की वो जनरली डिले हो जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है. एंड एक्सेसिव टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकावट आएगी. एंड येलो आर अ पेल स्किन, उनकी जो कलर है वो डल हो जाएगी. डल मीन्स वो थोड़ी सी येलो यानी लाइटेड पोर्शंस में दिखने लगेगी. दैट इज ऑल अबाउट द सिम्टम्स ऑफ thalassemia. Most important, it is a blood related problem and generally occurred by the interactions of alpha and beta amino acids and also beta alpha and beta protein chains. Okay, इनकी अगर कमी होगी, इनकी अगर ज्यादा एब्सेंस होगी तो दो प्रकार के मेजर और माइनर थैलेसीमिया होते हैं और ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं. जनरली इट इज ऑल्सो कॉज्ड एज अ लैक ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ लैक ऑफ आरबीसी. इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत कम होने लगता है एंड इट ऑल्सो कॉजेस माइल्ड एनीमिया. माइल्ड एनीमिया नाम भी डिजीज को कैरी करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट phenylketonuria. ओके, now phenylketonuria is generally we know that in our body there is a phenylalanine amino acids are present. हमारे बॉडी के अंदर ये अमीनो एसिड्स होते हैं and these amino acids are important for production of tyrosine. Tyrosine is a special enzyme and amino acids which generally production of nerve cells and most important function as a neurotransmitter and it is also important for the production of melanin pigment. ये melanin pigment को बनाता है और generally melanin pigment जो होता है it is most important described by the structure of color of any human being. चाहे उनके बालों का कलर हो, चाहे उनके फेशियल का कलर हो, चाहे बॉडी का कलर हो, that all are the denoted by the melanin pigment. एक इनके बॉडी के अंदर, ठीक है, here okay this okay now tyrosine जो है melanin pigment बनाता है and this melanin pigment is the important for the color of hair, color of बॉडी फेशियल एंड ऑल द बॉडी ऑर्गन्स के जो भी कलर्स होते हैं वो मेलानिन पिगमेंट डिफाइन करते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब फिनाइल एनालिन का प्रोडक्शन अगर टायरोसिन नहीं करेगा, ये जनरली फिनाइल एनालिन अमीनो एसिड्स इनका प्रोडक्शन बंद कर देता है और इनकी जगह पे एक पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है. पायरुविक एसिड वी नो दैट इट इज अ वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. ये प्रोडक्शन ऑफ टायरोसिन के प्रोडक्शंस को बंद करके फिनाइल एनालिन जो है वो पायरुविक एसिड की फॉर्मेशंस को करने लगता है, जिस कारण से टायरोसिन की प्रोडक्शंस रुक जाती है और इस कारण से जो ह्यूमन बीइंग्स में सिम्टम्स आने लगते हैं वो मेंटल रिटार्डेशन, उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है उनकी ग्रोथ रुक जाती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइट कलर ऑफ हेयर एंड स्किन, उनके स्किन का कलर, उनके हेयर का कलर भी लाइट हो जाता है. Okay, so that is all about the phenylketonuria. Most important, it is generally caused by the phenylalanine. Okay, now coming to the next point, we are going to discuss albinism. What is the meaning of albinism? Albinism का मतलब होता है when the conversion or accumulation of homogentisic acid. Why? What is the meaning of
क्या होता है, फिनाइल एनालिन जनरली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टायरोसिन, टायरोसिन बनाता है, बट फिनाइल एनालिन टायरोसिन ना बनाकर वो होमोजेंटाइस्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम अल्केप्टॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस कारण से हमारे बॉडी में एक ब्लैक कलर का पिगमेंट बन जाता है, जबकि बनना चाहिए था मेलानिन पिगमेंट। सो एल्बिनिज्म एक प्रकार के ब्लैक कलर का पिगमेंट बना लेता है, एंड दिस ब्लैक कलर पिगमेंट आर जनरली पासेस थ्रू अवर यूरिन एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक यूरिन डिजीज। इसको हम ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मेलानिन पिगमेंट को ना बनाकर ब्लैक पिगमेंट बनाता है, और ये बहुत हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ होमोजेंटाइसिक एसिड। ये होमोजेंटाइसिक एसिड के कारण उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है, जबकि होना चाहिए था टायरोसिन का। व्हाई? बिकॉज अगर टायरोसिन होता तो एल्बिनिज्म वाले ह्यूमन बींग्स जनरली उनकी बॉडी फेशियल हमेशा एक जैसा एक कॉमन फेस में होता है, लेकिन एल्बिनिज्म एक ऐसा डिजीज है जिसमें पूरे ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है वो पूरी व्हाइट हो जाती है, इंक्लूडिंग आईलिड्स, इंक्लूडिंग हेयर, इंक्लूडिंग देयर माउथ, सारी चीजें एकदम पूरी व्हाइट दिखने लगती है, जैसे फ्रेंच के ह्यूमन बींग्स जो होते हैं जनरली रेसिस वाले मंगोलियन उस टाइप के, दैट इज कॉल्ड द एल्बिनिज्म डिजीज। इसी को हम एल्बिनिज्म डिजीज कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट so many times we have discussed the sickle cell anemia. Okay, sickle cell anemia is generally concluded by the alpha and beta chain of proteins, ठीक है। अल्फा और बीटा चेन ये 141 अमीनो एसिड्स कैरी करते हैं और ये 146 अमीनो एसिड्स कैरी करते हैं, ठीक है। so when the disbalance of any amino acids is causes the sickle cell anemia, because we know that our RBCs are round and same, and when the any other genes creates any abnormalities, our RBC becomes as a sickle shape, and that is also called as sickle cell anemia. Okay, that time our blood will also ruptures, and it is also called sickle cell anemia. In last video we have already discussed. Okay, now after that, so RH factor is the most important. Why? Because in some of the human beings RH factor may be positive and RH factor may be negative, but RH factor is a very important. Why? Because some of the RH factor also creates different types of body systematic disorders in the most of the infant child. जो infant child होते हैं उसमें RH factor का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है, because when you providing RH factor blood to any female, that time that blood will passes through their foetal, उनके foetal से होते हुए उस embryo तक जाएगा, and it reaches into the blood of infant child. That time their hemolysis processes occurs in the child. Why? Because child is not able to adjust these types of blood. Okay, so hemolysis की प्रोसेस होती है वो RH फैक्टर की वजह से होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और hemolysis, हीमो मीन्स ब्लड एंड लाइसिस मीन्स मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक होना। सो वहां पे ब्लड जो है ब्रेक होने लगते हैं, एंड देयर इज अ लैकिंग ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। वहां पे जो ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन बंद हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द RH फैक्टर. इट इज नॉट an important question. Most important question is sickle cell anemia, okay, albinism, phenylketonuria and thalassemia. Okay, now we are going to discuss that chromosomal disorders. What is the meaning of chromosomal disorders? जब भी क्रोमोसोम्स के बीच के लेके जो भी डिफरेंसेस होंगे, जो भी क्रोमोसोम्स किसी में डिलीट होंगे, किसी में एक्स्ट्रा ऐड होंगे, that is called as chromosomal disorders. Okay, it is a very important and interesting topic. Why? Because first of all, अगर हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इज द फर्स्ट ऑफ ऑल coined by Langdon in 1866. इसको सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था लैंगडॉन। इन्होंने 1866 में बताया था। जनरली इसमें होता क्या है, वी नो दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन आवर ह्यूमन बॉडी इज 46 हमारे जो ह्यूमन बॉडी में, तो इनमें क्या होता है जनरली क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं 21, क्रोमोसोम्स नंबर 21, उनमें एक क्रोमोसोम, जैसे हमको पता है कि 44 जो हमारे ऑटोसोम्स है, लेकिन एक क्रोमोसोम्स अगर ये गैमेट का है तो एक और क्रोमोसोम्स आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर कितने हो गए, सो हियर बिकम्स 3। यहाँ पे क्रोमोसोम्स अगर एक कोई भी ऐड हो जाता है, यहाँ ऐड कर दे या यहाँ पे, सो दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। इसी को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, एंड मोस्टली क्रोमोसोम्स नंबर 21 पे ये ऑकर होते हैं। जब भी क्रोमोसोम्स नंबर 21 पे हिंड्रेंस होगा ड्यू टू द डिसऑर्डर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। एंड डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द ट्राइसोमिक क्रोमोसोम्स। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स का पैटर्न है वो ट्राइसोमिक यानी 3 हो जाते हैं, ठीक है। ट्राइसोमिक मतलब 3 के फॉर्मेशन हो जाते हैं क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड
ट्राइसोमिक. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में बी ऑल्सो चेंज्ड. जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है. इट कम्स एज 47. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 44 थे प्लस 45 प्लस 46 और एक और क्रोमोसोम जब यहाँ पे ऐड हो जाएगा दैट इज कॉल्ड 47. ओके, सो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो कितने आ जाते हैं, 47 आ जाते हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू बाय टेकिंग एन एग्जांपल. ठीक है, ह्यूमन बींग्स में 44 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस एक्स वाई एक क्रोमोसोम्स मेल का होता है, या फिर 44 क्रोमोसोम्स और एक्स एक्स होते हैं फीमेल के. एक क्रोमोसोम्स और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाते हैं ट्राइसोमिक. ट्राइसोमिक मतलब होते हैं क्रोमोसोम्स नंबर 3 हो जाना. क्रोमोसोम्स नंबर 3 हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ट्राइसोमिक. और उसके बाद 44 प्लस 2 46 और प्लस एक और क्रोमोसोम्स आएगा दैट इज कॉल्ड 47. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में भी ऑल्सो इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम. उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं. जनरली इट हैज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन बींग्स. बहुत सारे ह्यूमन बींग्स में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी. जनरली देयर माउथ इज कॉन्स्टेंटली ओपन. उनका जो माउथ होगा वो हमेशा खुला हुआ रहेगा. देयर इज मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल रिटार्डेशन होंगे, बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी. ठीक है, मेंटल भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा. एंड मोस्टली देयर फेसेस स्ट्रक्चर्स आर जनरली अपीयर्स एज अ मून लाइक. ठीक है, जैसे चंद्रमा का शेप होता है वैसे उनके चेहरे का शेप हो जाते हैं. ओके, so that is all about the chromosomal disorders and it is also considered as Down syndrome. ठीक है, ये Down syndrome था. Next we have to discuss some more diseases of different types of chromosomal disorders. Okay, so